کون سی جماعت ہوگی وہ جو جنت میں جائے گی؟ تو نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج کے موسم میں، آج کے دن جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں، جیسا ہمارے زمانے میں اسلام ہے، ایسے اسلام کو فالو کرنے والے، اس اسلام پر چلنے والے، ایسا توحید پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا 4 امامات تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں درگاہیں تھی، مزاراں تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن تھا۔ جو پیغام ہمارے لیے اتارا، ہمیں وہ پڑھ کو جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے میرا پروردگار ہم نے پیدا کریا والا خالق مالک اس میں کیا احکام نازل کریا، اسے کم سے کم پڑھنا، سننا، سمجھنا۔ ارے تم نہ نہیں پڑھنے آئے کیا ہوا؟ آج قرآن ترجمے کے ساتھ موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ کون سا سورہ سننا چاہتی ترجمے سے، خالی لگا لیو آڈیو، کان میں ہیڈ فون رکھ لیو، قرآن کی تلاوت بھی آتی، ترجمہ بھی آتا۔ غور سے وہ سن کر سمجھنے بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ جو قوم کبیرہ گناہ کرنے میں نہیں جھجکے گی، اللہ سے نہیں ڈرے گی، عیاشیت میں اترے گی، فحاشیت میں اترے گی، کون سی مسلمان قوم کی بات یہ چل رہی؟ سو کافروں کو چھوڑو، ہندوؤں کو چھوڑو، غیر مذہب والے چھوڑو، ان کو اسلام سے بھی سروکار نہیں، جنت بھی معلوم نہیں، جہنم بھی معلوم نہیں۔ ان مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو مسلمان قوم کبیرہ گناہوں میں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایسی ایسی بیماریاں اتارے گا، ایسے نام جو انہوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے، ان کے بابا دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ سنے تھے کب تک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو میرے نبی، ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور بے شک وہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بعض کافر و مشرک جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے بہت سارا زنا کر لیا، بہت سارے شراب پی لیے، کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ بے شک وہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی شرک بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ اسے بھی معاف کرے گا، بشرط یہ ہے وہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ شرک نہیں کرنا۔ انسان کتنا بھی گناہ کرے، شرک سے بری رہے، یہ اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے، لیکن گناہوں سے مراد وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ صغیرہ جو گناہ ہیں، بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری 5 وقت کی نمازیں جب وضو کرتے ہیں تو یہ وضو اپنے درمیانی گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تمہارے جمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان جمعہ اول وقت میں پڑھے، بغیر کوئی لغو حرکت کیے ادا کرے۔ رمضان مکمل عبادتوں کے ساتھ گزارے، کوئی عبادت اس سے چھوٹ نہ پائے، اور ہر عبادت رضائے رب کی خاطر کرے۔ اس طرح 2 رمضان گزار لیا تو درمیانی رمضان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ یہ رمضان بنتا ہے۔
لیکن کبیرہ گناہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا ان تسبیح کی برکات کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ تسبیح نہیں پڑھتے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں جب شروع کے 2 عشرے میں رمضان میں فجر میں درس دیا کرتا تھا تو اس وقت دیکھتا تھا کہ لوگ سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد 6 قسم کے اذکار جو یہاں دائیں جانب آپ کے بورڈ میں لگایا گیا ہے، ان 6 اذکار پڑھے بنا آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح۔ اتنے اذکار ادا کیے بنا آپ نہیں اٹھ سکتے۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو سلام پھیرتے اٹھ کر بھاگتے ہیں، کیا جلدی رہتی بھائی ویسی؟ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھنا اور تسبیح اذکار پڑھنا۔ جب تک ایک نمازی نماز کے بعد تسبیح و تحلیل و تذکیر کرتا رہے گا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی یا ابن آدم، جامع ترمذی کی حدیث قدسی، انس بن مالک حدیث کے راوی، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے بھی آ جائے میرے پاس، لا اشرک بی شیئا، میری ذات میں اگر کسی کو شریک نہیں کیا رہے گا، میری ذات میں شرک اگر تو نہیں کیا رہے گا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں ہر قسم کی مغفرتیں لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہمارے گناہوں سے۔ ہم جتنے بھی گناہ کریں گے ہماری گناہ سے بہت بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، ایسا سمجھ کے ہونا کہ تو گناہ نہیں کرنا۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ سرزد ہو رہے ہیں وہ اور بات، ہونا کہ تو مستی سے گناہ نہیں کرنا۔ 66 نمبر آیت سورہ زمر کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، 7 زمینیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، 7 آسمان اللہ کے مٹھی میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس سے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ایک یہودی عالم، تورات انجیل زبور کے پڑھنے والے بڑے ماہر عالم، وہ آتے ہیں نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تورات انجیل زبور میں چند نشانیاں پڑھی ہیں آخری نبی کے، مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ تورات انجیل زبور میں چند سوالات ہیں، ان سوالوں کے مجھے جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان سوالوں کے جواب کائنات کا آخری سچا پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔
اگر آپ واقعی میں اللہ کے سچے رسول ہو تو آپ میرے سوالوں کے جواب دیجئے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ سوال تورات انجیل زبور میں نازل کیا ہے تو اللہ مجھے بتائے گا اس کے جوابات۔ کیجئے، سوال کیجئے۔ وہ جو 3 سوال کیے تھے عبداللہ بن سلام، ان میں کا پہلا سوال یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، 7 زمین 7 آسمان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پہ نچائے گا۔ اگر یہ بات سچ ہے، واقعی میں اللہ کے انگلیوں پر 7 زمین 7 آسمان ہوں گے، تو اس وقت انسان جنات کہاں ہوں گے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، لڑکا یا لڑکی کبھی باپ کی شکل کا بنتا، کبھی ماں کی شکل کا بنتا، ایسا کیوں؟ کوئی لڑکا کوئی لڑکی یا تو انہیں باپ کی شکل کا پیدا ہوتا یا تو انہیں ماں کی شکل کا پیدا ہوتا، ایسا کیوں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، جنتی جب جنت میں جائیں گے ناشتے میں کیا کھائیں گے، دوپہر کا کھانا کیا کھائیں گے؟ یہ سوال۔ میرے ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ اگر آپ واقعی میں پیغمبر ہیں تو میرے جواب دے دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جواب بتایا۔ پہلا سوال، انگلیوں پر اللہ عز و جل کے زمین و آسمان ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، پہلی سور پھونک ماریں گے، ساری دنیا میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ کافر، فاسق، فاجر، یہود، نصارہ، جہنمی ہوں گے۔ کسی مسلمان پر قیامت نہیں آئے گی، سب دنیا مر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بول کر 7 آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کے بعد بڑے برگزیدہ فرشتے بھی مر جائیں گے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری سور میں لوگوں کو زندہ کرے گا۔ کئی سال کے بعد حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت اس وقت ساری دنیا والوں کے سامنے اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتے ہوئے جنت کو ایک انگلی پہ، جہنم کو ایک انگلی پہ، 7 آسمانوں کو ایک انگلی پہ، 7 زمینوں کو ایک انگلی پہ، پہاڑوں سمندروں کو ایک انگلی پہ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگلیوں پر بال کی طرح، گیند کی طرح بنا کر اچھال اچھال کر نچائے گا۔ اللہ اسی کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ کے قبضے قدرت میں دائیں ہاتھ میں 7 آسمان 7 زمین ناچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نچائے گا، اللہ تعالیٰ اچھالے گا، اور اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے آج؟ کون بادشاہ ہے؟ اے عبداللہ، تمہارا یہ سوال ہے کہ جس وقت زمین، آسمان، جنت، جہنم سب اللہ کی انگلیوں پہ رہیں گے تو انسان جنات کہاں رہیں گے؟ سنو، اللہ بتاتا ہے مجھے، اس وقت سارے انسان سارے جنات پل صراط پار کر رہے ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے سارے انسان سارے جنات، اور اللہ تعالیٰ 7 آسمان 7 زمین، جنت و جہنم کو انگلیوں پہ نچائے گا۔ تمہارا دوسرا سوال، لڑکا کبھی باپ کی شکل کا کیوں بنتا ہے، کبھی ماں کی شکل کا کیوں بنتا ہے؟ سنو، میرا اللہ اس کے بارے میں مجھے بتاتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے پانی کو اللہ تبارک و تعالی
मादर रहम में जमा करता है, मां के पेट में जमा करता है। बाप के रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला पानी और मां के सीने के हड्डियों से निकलने वाला पानी, रीढ़ की हड्डी बाप के निकलने वाली मनी और मां के सीने की हड्डियों से निकलने वाला वो पानी का खतरा मनी, इन दोनों पानियों को जब अल्लाह औरत के मादर रहम में जमा करता है तो कभी मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाता है। मर्द का पानी ताकतवर होता है, औरत का पानी कमजोर होता है। मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आता है तो बच्चा बाप की शक्ल का पैदा होता है। कभी औरत का पानी कुव्वतदार होता है, मर्द का पानी कमजोर होता है। कभी औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा हो या बच्ची मां की शक्ल का पैदा होता है। यह हुआ दूसरा जवाब। तुम्हारा तीसरा सवाल, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे? मेरा अल्लाह इसके बारे में मुझे बताता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को मछली की कलीजी से नाश्ता कराएगा। पहली नेमत, जन्नत की पहली नेमत जो जन्नती खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। और जन्नती दोपहर का खाना क्या खाएंगे? जब से अल्लाह ताला जन्नत को पैदा किया है उस वक्त से जन्नत में गाय को पैदा किया है। एक गाय जन्नत में अल्लाह पैदा कराया, वो गाय जन्नत के नेमता खा रही, जन्नत के किनारे घूम रही, जन्नत के नेमता खा रही, जन्नत के किनारे घूम रही। इतनी बड़ी है वो गाय, इतनी बड़ी है, सात जमीन सात आसमान या दुनिया कोई हैसियत नहीं रखते उस गाय के सामने। इतनी बड़ी गाय। जब जन्नती तमाम के तमाम जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला दोपहर में वो गाय ज़बा करके गाय का गोश्त दोपहर में जन्नतियों को खिलाएगा। अब्दुल्ला बिन सलाम ये तीनों सवालों के जवाब सुने, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़-फोड़ का गोश्त नहीं खाते थे, लेकिन खाने की इजाजत दिए। बोले मुझे पसंद नहीं, तुम्हें खा लो। इंसान कभी कराहियत महसूस करता, नहीं भाई मैं नहीं पसंद करता, वो अलग बात। उसके बाद अल्लाह कहता है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। सूरह ज़ुमर 71वीं आयत। और एक गिरोह जो जहन्नम के करीब जब लाया जाएगा, जहन्नम के दरवाजे पर इनको पहुंचाया जाएगा, इनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे और वहां जहन्नम का दारोगा, जहन्नम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ फरिश्ता उनसे पूछेगा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम, ऐ जहन्नमियों क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई अल्लाह के दीन को वाज़ेह करने वाला नहीं आया था? जब फरिश्ते पूछेंगे तो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे हाँ आए थे, अंबिया आए थे, रसूल आए थे, हमने उनकी तकज़ीब कर दी, हम जहन्नमी बन गए। अंबिया के बाद उलमाए किराम आए थे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर पेश करते थे, हदीसें सुनाए थे, लेकिन हमने इधर से सुनकर इधर से छोड़ दिया, हमने सुनकर भी अनसुनी कर दी, इसीलिए आज हम नुकसान उठाने वाले बन गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज जितने भी बयान में बातें बोलती हैं भाई, शिरक करो न को, बिदात करो न को, हराम का खाओ न को, किसी को सताओ न को, लोग इधर से सुनते उधर से छोड़ती, शराब पियो न को, घुटिया खाओ न को, इधर से सुनती उधर से छोड़ती।
तकब्बुर करो नको, टखने से नीचे पैंट लटकाओ नको, हाँ शयातीनी हरकता नको करो, नबी की इताअत कर, इधर से सुनती इधर से छोड़ती। ये लोग पछताएंगे कब? जब जहन्नम के गेट के पास पहुंचेंगे। उस दिन जब जहन्नम का दारोगा पूछेगा, क्या भाई समझाने वाला कौन नहीं आया था क्या? कहीं सुधरे नहीं तुम्हें? कहीं कोई ऐसे काम कर को आए जहन्नम में? कौन डराने वाले उलमा नहीं आए क्या? कुरान हदीस पेश करे नहीं क्या तुम्हारे सामने कौन भी? अरे आए थे जी, कैसी बदनसीबी जी हमारी, सुधरे नहीं जी हमें, सबा सुधरेंगे ले, सबा अमल करेंगे ले, ऐसा बोले बोले दुनिया से चले गए। काश वो हदीसों पर अमल करते, काश उन आयतों पर अमल करते, आज जहन्नम के अंदर नहीं आते। किसी दूसरे इंसान को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। हर इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, आपके साथ ये होने वाला है। जब आपको ले जाया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा जहन्नम के किनारे खड़े होकर। वो दिन आने से पहले आज जो आयतें आपके सामने सुनाई जा रही, जो हदीसें आपके सामने पेश किए जा रही, अल्लाह के वास्ते केयरफुल करके उसे सुनो, तवज्जो देकर उसे सुनो और उस पर अमल करने की फिक्र पैदा कर लो, वरना पछताने के सिवा, जहन्नम में जाने के सिवा कोई काम नहीं रहेगा कयामत के दिन। उसके बाद सूरह मोमिन, अल्लाह ताला इस सूरत में कहता है, या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नद दारल आखिरता हिया दारुल क़रार। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की जगह है और आखिरत की जिंदगी हमेशा का ठिकाना है। दुनियावी जिंदगी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कहा। और आइंदा सूरह शूरा में भी 20 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, जो हमसे आखिरत मांगेगा हम उसके मांगने में और उसकी खेती में मजीद हम नेमतें बढ़ा कर देंगे। वमन हर्सद दुनिया, वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो हमसे दुनिया तलब करेगा, नुअतीहि मिनहा, हम उसे दुनिया की दौलत से मालामाल कर देंगे। वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, लेकिन आखिरत में उसे कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं, ये दुनिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के निगाह में इतनी हकीर है, लौ कानति दुनिया तदनु इंदल्लाहि जनाहम बऊज़तम मा सका मिनहा काफिरतन शरबतम मा। अगर ये दुनिया अल्लाह की निगाह में किसी मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत रखती, तो किसी काफिर को एक घूंट पीने के लिए अल्लाह पानी भी नहीं देता। काफिरा पी रही, खा रही, बिल्डिंगा में एंजॉय कर रही, मतलब ये दुनिया अल्लाह की निगाह में मक्खी के पर के तो भी हैसियत है, उससे भी गई गुजरी है। हम इस दुनिया के पीछे पड़े हैं, इस दुनिया के मालो मता के पीछे पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ लोगों, दुनिया चाहिए दुनिया दे दूंगा, आखिरत चाहिए आखिरत दूंगा, लेकिन दुनिया उसको अल्लाह तबारक व तआला देगा जो दुनिया परस्त होगा, जिसे आखिरत से कोई सरोकार नहीं होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते कि बेशक इंसान कयामत के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने खड़ेगा, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा, सवाल अल्लाह करेगा, जवाब अल्लाह का बंदा वो देगा। दाएं देखेगा जहन्नम, बाएं देखेगा जहन्नम, पीछे देखेगा जहन्नम, आगे देखेगा नाम अमाल, बुरा नाम अमाल, अच्छा नाम अमाल नहीं, बुरा नाम अमाल। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे दुनिया में माल मता, गाड़ी, बंगले, ऐश आराम, बीवी, बच्चे, दुनिया की तमाम फरावानियां तुझे दिया था नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, बेशक तू दिया था, सारी फरावानियां दिया, सारी नेमतें दिया। बंदा अल्लाह के दरबार में कहेगा कि हाँ अल्लाह,
तूने सारी नेमतें मुझे दिया, सारी नेमतों से माला माल किया, अल्लाह पूछेगा मेरी इबादत क्यों नहीं किया, मेरे रास्ते में खर्चा क्यों नहीं किया, मेरी दी हुई दौलत को मेरे रास्ते में कंजूसी, मैंने तुझे दिया, मेरे रास्ते में देने से कंजूसी। अल्लाह होश अब आ गई, अल्लाह अब यकीन हो गया, अल्लाह अब भेज दुनिया में, सारी दौलत तेरे रास्ते में कुर्बान करके आ, नेक अमल करके आ, सजदे करके आ, तौबा करके आ, तू ऐ अल्लाह तेरी इबादत करके आ, तू ऐ अल्लाह दुआएं करके आ, तू ऐ अल्लाह तमाम तुझे खुश करने वाले नेकियां करके आ। अल्लाह बोलेगा मोहलत जब थी उस वक्त ख्वाब गफलत में था, अब अजाब का दिन आया, अब मोहलत मांग रहा, कोई मोहलत नहीं, अजाब तेरी मुकद्दर में अजाब। देख ले एक दुनिया परस इंसान अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, जहन्नम का गौता लगाकर अल्लाह के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा दुनिया में कितनी खुशियां किया, कितना एंजॉय किया, कितने मौज मस्तियां किया, कितना आरामती किया। अरे अल्लाह मैं जानता नहीं आराम किसे बोलती। जहन्नम का यह गौता दुनिया के तमाम अय्याशियों को, फहाशियों को, ये आरामतियों को भुला के रख देगा। कभी दुनिया की हिरिस मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लहू मखालिदु समावाति वल अर्ज़ यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ही के पास जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां हैं, वो जिसे चाहता है रोजी बढ़ा के देता है, जिसे चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। अल्लाह बेहतरीन इल्म रखने वाला, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, उन्हें सोचा भी नहीं रहता उतनी दौलत अल्लाह उसे दे डालता। कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत करता लेकिन उसके मुकद्दर में 2 रोटियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसके हक में क्या बेहतर ये हम नहीं जानते, अल्लाह जानता। किसे कितना दिए तो बेहतर, किसे कब कितना देना अल्लाह को ज्यादा मालूम। इंसान जल्दबाजी कर नहीं, अल्लाह अभी छोड़ना, अभी छोड़ना। और इसके अलावा अल्लाह ताला कहता वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कोई मुसीबत दुनिया में हम अपनी जानिब से नहीं देते, लेकिन हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता। अल्लाह ताला उसे कोई मुसीबत नहीं देता, कोई परेशानी अल्लाह अपनी जानिब से नहीं देता। दुनिया में जितने भी आफतें, बलाएं, मुसीबतें, अल्लाह के नबी कहते इंसान के 5 गुनाहों की सजा 5 किस्म के अज़ाबात से हम दुनिया ही में दे देते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, हम अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं देते, इंसान अपने हाथों से मुसीबतें मोल लेता है। अल्लाह के नबी क्या बोलते, 5 किस्म के गुनाहों की सजा 5 किस्म के अज़ाबात की शक्ल में हम दुनिया ही में दे देते हैं। क्या है वो? जो कौम कुरान और हदीस को छोड़कर अपने बाप दादा के तरीके पर अमल करेगी, कुरान हदीस सामने आने के बावजूद ठुकरा देगी, कुरान और हदीस के फैसले को नहीं अपनाएगी, हम ऐसी कौम पर दुश्मनों को लाकर मुसल्लत कर देंगे, दुश्मनों का रोब और दबदबा इनके दिलों में बिठा देंगे। आज देखो दुश्मन हमारे सिर के ऊपर बैठकर हुकूमत कर रही। क्या अभी बोल सकते नहीं, मुंह खोल सकते नहीं। हमें 15% जो ब्राह्मण कौम है पूरी इंडिया पर हुकूमत कर रही, 33 करोड़ मुसलमाना का, 15 करोड़ वो का। लेकिन हमें कसीर तादाद में होने के बावजूद मगलूब, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे, हमारे घर तोड़े जा रहे। कभी बोलती कि मस्जिदों में अजान नहीं होना, कभी बोलती गाय ज़बान नहीं करना, कभी बोलती कॉलेज में हिजाब पहन के नहीं आना। अभी दुनिया के नवे कानून क्या बनाए तो चुपके बैठ को सुन रहे हमें। जुल्म दुश्मनों को लाकर हम सरों पर तुम्हारे बिठा देंगे। अल्लाह के नबी बोले सब बात है। इतने 33 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर भी क्या भी नहीं कर ले रहे, कैसा करेंगे? ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है। एक जमाना आएगा
जब दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद में उस वक्त कम रहेंगे? नहीं नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज्यादा रहोगे। क्या वजह? इतने ज्यादा तादाद में रहकर भी लोग हमको ऐसे टूट पड़ेंगे, लोग हमको मिटाएंगे, मारेंगे, जलील करेंगे, जुल्म करेंगे। क्या वजह? नबी ने कहा, तुम्हारे दिलों में तुम वहन के शिकार बन जाओगे, वहन के शिकार तुम बन जाओगे, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे लिए जिल्लत मुकर्रर कर देगा। ऐ अल्लाह के नबी, वहन किसे बोलती? मल वहन या रसूलल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, वहन क्या चीज है बताइए ना। नबी ने बयान फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। मरना नहीं चाहता कोई भी, दुनिया बहुत पसंद उसे, हलाल से तो आंधे, हराम से तो आंधे, और दुनिया होना, इसके शिकार तुम बनोगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला अजाब, जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर कर देगा। ये पहला अजाब। कुरान हदीस छोड़ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर दुश्मनों को लाकर मुसल्लत करेगा। पहला अजाब, पहला गुना, पहला अजाब। दूसरा गुना, जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह ताला इस कौम को फख्र फाखा में मुब्तला कर देगा, खैर और बरकतें इनसे छीन लेगा। नापतोल में कमी पेशी करना, सामने वाले को धोखा देके तिजारत करना, डुप्लीकेट आइटम को ओरिजिनल का लेबल लगा को बेचना, मेड इन चाइना को मेड इन जापान का लेबल लगा को गारंटी, भाई फुल गारंटी तुम्हें लो, बेहतरीन आइटम है, देखो चला को दिखा तो चलता, उन्हें चला दिखाते टाइम चलता, घर में जाने बाद तुझको फूट लेकर हड़क जाता, बाद में ले ले कहे तो मैं क्या भी कर सकता नहीं, भाई गारंटी है, रखो, कंपनी वाला आइटम को देखेंगे, आता भी नहीं, इन्हें लेता भी नहीं। टूटी फूटी हुई चीज ऊपर से प्लास्टर मार के, ऊपर से पॉलिश मार के सही बोलकर बेचना, धोखे की अलामत। नापतोल में कमी पेशी करना क्या समझेगा? तो आधी केजी के अनाज को काल केजी बेचा तो इसे चले बोलते, सो डंडी बोलते नहीं। कारोबार के तमाम धोखे आ गए इसके अंदर, हर धोखे इसके अंदर आ गए। हराजी लगने की बात आई तो जानबूझकर आदमियों को रुकाती है, ए बोली लगाना को, बोली लगाए उसका फायदा होता, बाद में जा घर में हमें बोली लगा लेंगे। कोई आदमी तिजारत करके सेट ले लिया, अल्लाह के नबी बोलते हैं, जब दो आदमी लेवा देवी करते हैं, तीसरे आदमी को एंट्री करने की इजाजत नहीं। इन्हें दे रहा, उन्हें ले रहा, अगर दोनों जुदा हो गए, इन्हें देने को सेट नहीं हुआ, उन्हें खरीदने को सेट नहीं हुआ, अलग, तुम्हें जाको एंट्री मार सकते, तुम्हें जाको वहां भी बात कर सकती नहीं। उन्हें खरीद लिया गए थे कितने में? 10 लाख रुपए में, बात हो गई, एडवांस भी दे डाला, इन्हें भी उसके कान में फूकता तो उसे 11 लाख में कह दिया, भाई मैं 15 लाख दे, तू नीचे दे। ये धोखे की तिजारत है। ऐसे बेशुमार तिजारतें हैं, मैं बोलते बैठूं तो 1 घंटा भी ना काफी तिजारतों की लिस्ट। ऐसे बेशुमार धोखे के तिजारत है, वो तमाम धोखे के तिजारत इसमें शामिल है। जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेंगी, धोखे की तिजारत करेंगी, अल्लाह तबारक व तआला कौम की खैर और बरकत उस कौम से छीन लेगा। दूसरा गुना, दूसरा अजाब। कितना कमाई तो भी भिखारियां के भिखारियां चलती, तुम्हें याद रखो, किसी और को धोखा देखो, मुंह में मट्ठी मार को, तुम्हें कमाई ना, तुम्हारे हाथों में नोटा दिखने रहेंगा, बरकत अल्लाह निकाल डाला वो नोटा से। मोटे मोटे पेंडे कट्टे कमाई तो भी अल्लाह उसमें बरकत नहीं रखा। क्यों? धोखे के पैसे। ये अल्लाह के नबी कहते, मन खश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। और धोखा देने वाला क़यामत के दिन इस हालत में खड़ेगा, अल्लाह ताला उसके पीछे, उसके सुरीन के पास पीछे से, उसके पीठ के पीछे एक झंडा अल्लाह खड़ा करेगा। अलम, अलम बोलती झंडे को। जो जितना बड़ा धोखेबाज रहेगा उसके पीछे उतना बड़ा झंडा लको खड़ेगा। इन्हें इतना बड़ा धोखेबाज सारी दुनिया वालों को दिखाने। किसी को धोखा मत दो, किसी के जज्बात का खून नको करो, किसी के भरोसे को नको तोड़ो। धोखा बोले क्या? किसी के भरोसे तोड़ना, झूठ बोलना, धोखा। मेरे दीन और इस्लामी बात। दूसरा गुना, दूसरा अजाब। तीसरा गुना,
जो कौम ज़कात देना बंद कर देगी, ज़कात नहीं देगी, अल्लाह ताला इस कौम पर बारान रहमत आसमान से रोक लेगा, बारिशें अल्लाह आसमान से बंद कर देगा। अब देखो कितने की जगह बारिशें हो रही, हमारे यहाँ नहीं हो रहे। कभी कभार ऐसा होता, आजू बाजू बारिशें होते रहती, हमारे यहाँ नहीं होते रहते। क्या दुआएं करें तो भी बारिश नहीं उतरते रहते, क्या बारिशों की नमाज पढ़ को दुआ करे तो भी नहीं आते रहते। उसकी वजह अल्लाह खुद फरमाता, मेरे नबी खुद कहते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कौम ज़कात नहीं देगी, ज़कात अदा करने में हीले बहाने करेगी और ज़कात कमा हक़हू नहीं निकालेगी, अल्लाह ताला आसमान से बारान रहमत रोक लेगा। अगर इस जमीन पर मखलूक, चौपाए, चरिंदे, परिंदे, ये जानवर, कीड़े मकोड़े ना होते तो आसमानों पर तुम्हारी गुनाहों की वजह से ये खतरा बारिश अल्लाह नहीं देता था। इतने बड़े गुनहगार हमें अल्लाह ताला देता कहे के वास्ते, अरे ये चरिंदे, ये परिंदे, ये कीड़े, ये मकोड़े, ये मछलियां, ये तितलियां, ये अल्लाह की ये हैवानात, ये चार पाए के जानवर, इनको होना नहीं, उनके बहाने से हम ना मिल रहा पानी। हमारे इतने बड़े गुनाह, हमारे इतने बड़े गुनाह। अरे कितने बड़े मालदारा हैं जी हमारे पास, वो मालदारा अपनी ज़कात निकाल को अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में बांटना शुरू करे, एक भिखारी भी नहीं बचता पूरे शहर में, पूरे आंध्रा में एक भिखारी भी नहीं बचता, एक भिखारी भी नहीं बचता। लाखों करोड़ों क्या मिलियन ज़कात निकलती, अगर कमा हक हो हर आदमी ज़कात निकालना शुरू करे, एक आदमी भी नहीं बचता। उल्टा ज़कात देने के बाद हम लोग मुसलमानों के लिए रिफाही काम कर सकती हैं, उनके लिए अस्पताल बना सकती हैं, उनके लिए स्कूल बना सकती हैं, उनके लिए दुनिया के खिदमत के रिफाही काम हम कर सकते, लेकिन नहीं करते, ज़कात नहीं निकाल, आसमान से बारान रहमत अल्लाह रोक ले। तीसरा गुना, तीसरा अज़ाब। चौथा गुना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कौम कसरत से जिना करेगी उस कौम में मौत को हम आम कर देंगे। कसरत से मौतें होने लगेंगी उस कौम में जो जिना आम कर लेगी। पहले के जमाने में जिना मुश्किल था, निकाह आसान था। आज के जमाने में निकाह मुश्किल बना डाले, जिना आसान बना डाले। पहले के हमारे बुढ़े लोग जो हमारे दादा कहते, हमारे बाबा कहते, नाना कहते, वो लोग अपनी जवानी में शादी कर ले को अंदर रूम में गए तो भी मालूम नहीं रहता था उनको क्या करना करने का। शबे ज़ुफ़ाफ़ा में नाइट, फर्स्ट नाइट में, सुहागरात में क्या करना का तो ना हमारे बुढ़िया को मालूम था, ना हमारे बुढ़ों को मालूम था, क्या अभी मालूम नहीं। आजकल के बच्चे, छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसे पूछो बेटे बच्चा कैसा पैदा होता, उन्हें करेक्ट बताता। कैसा बताता? मोबाइल में देखो, टीवी में देखो। हमें बड़े लोग, बेहया लोग बच्चों को हमारे बिठाले को गंदे गंदे सीना दिखा को सब बच्चा आज जानता कैसा बच्चा पैदा होता, बेडरूम में क्या होता, बेडरूम के बाहर क्या, सब जानता। बेहयाई के अड्डे, जिना की कसरत। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जो कौम कसरत से जिना करेगी हम मौत को उस कौम में आम कर देंगे। हमारे बाबा दादा के जमाने में कौन तो जानता था एड्स बीमारी क्या होती, जानते थे कौन तो नहीं। अब निकली वो बीमारी, एड्स की बीमारी कहते। अभी 20-25 साल से सुन रही है मैं एड्स की बीमारी। पहले हमारे बाबा दादा के जमाने में ये एड्स की बीमारी क्या करने का नाम भी नहीं, निशान भी नहीं आता। जिना फैलने लगा, एड्स की बीमारी की शक्ल में अल्लाह को रख डाला। अरे जिना क्या कहते, एड्स लगा कहते, 1 साल 2 साल में एंट लग गया कहते। अल्लाह का अजाब ही है, अल्लाह का अजाब ही है। जो कौम कसरत से जिना करेगी मौत को उस कौम में हम आम कर देंगे। चौथा गुना, चौथी सजा। अब उसके बाद 5वां गुना, 5वीं सजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, जो कौम कबीरा गुनाहों में मुलविस होगी, अलानिया तौर पर अय्याशी करेगी, फहाशी करेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां इस कौम में पैदा करेगा जिन बीमारियों के नाम ना इन्होंने सुने होंगे ना इनके बाप दादा ने सुने होंगे।
ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में हम पैदा करेंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में शर्म ना आनी। आज जाग देखो कॉलेजा में क्या चल रहा, पार्का में बुरखा पहन ले को हमारी बहनें। अरे जब तुझे अय्याशी करना ही है, फहाशी करना ही है, बुरखा कहीं पहन ले जा रही मेरी बहन, बुरखा कहीं पहन ले जा रही है। बुरखा पहन को इस्लाम को बदनाम करना चाहिए क्या? मुसलमानों के साथ हिंदुओं के क्या अय्याशी, क्या फहाशी। ये मोबाइल जब से आया लोग अय्याश फहाशी में नौजवान तबका कसरत से बढ़ गया। बंद कमरे में हमाम में नहाया तो भी वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपना बदन दिखाने वाली अय्याशी फहाशी कौम बन गई है। इंटरनेट पर इन्हें क्या करता, चंद दिनों के वास्ते उसे फंसा लेता, उसकी पूरी वीडियो बना उसे ब्लैकमेल कर इंटरनेट पर डाल उसकी गंदी फिल्म। कितने ऐसे नहीं हुए वो देखना वैसा कोई ने फांसी डाले मरती, जहर खा को मरती। जो कौम अय्याशी आम कर लेगी, आजकल के नौजवान देखो, लड़कियां देखो, बंद कमरे में बैठकर भी टिकटॉक वीडियो बनाने का मुजरा बना लिए। टिकटॉक वीडियो का तो एक मुजरा। पहले जमाने में नाचने वालों का खोटा रहता था, बादशाह लोग जाग बैठते थे, जिना करने वाली जानिया औरतों को खोटा बोलते थे। शराब पीना, औरतों से जिना करना, बादशाह लोग निकल खाना, नाच गाना होता था वहां, मुजरा। आजकल की लड़कियां बंद कमरे में बैठ को टिकटॉक वीडियो में मुजरा बना रही। क्या? कौन सा भी एक फिल्मी सॉन्ग, कौन सा भी एक फिल्मी डायलॉग मेकअप कर ले को, अपना बदन दिखा ले को, इन्हें मुंह हलाती, वो ऐसा लगता इन्हें डायलॉग बोल रही करना, इन्हें गाना गा रही करना। टिकटॉक वीडियो। जो कौम टिकटॉक में पढ़कर अय्याशी करेगी, फहाशी करेगी, कबीरा गुनाह करने से नहीं शर्मेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, क्या अल्लाह बाराने रहमत उतारेगा? क्या ऐसी कौम पर अल्लाह की मददें आएंगी? अल्लाह अजाब नहीं आए तो फिर क्या आता जी? जब से ये कौम ऐसी अय्याशियत में, ऐसी फहाशियत में उतरी, अल्लाह ताला कोरोना नाम की एक बीमारी दुनिया में नाजिल कर डाला। कोरोना कौन जानते थे? 2019 से पहले कोविड-19 कोविड के नाम से जो बीमारी आई कोरोना, उसे कोई सुना भी नहीं था, जानता भी नहीं था। ये कोरोना एक वायरस क्या, ये बीमारी क्या, ऐसा ट्रांसफर होती क्या? आदमी सांस की तकलीफ से फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन ब्लॉक हो, ऐसा तड़प तड़प को मरता क्या? पूरी दुनिया को अल्लाह डरा को हला को रख डाला कोरोना बीमारी लाग। अल्लाह बोलता जो कौम कबीरा गुनाह करने में नहीं झिझकेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, अय्याशियत में उतरेगी, फहाशियत में उतरेगी। कौन सी? मुसलमान कौम की बात ये चल रही। सो काफिरों को छोड़ो, हिंदुओं को छोड़ो, गैर मजहब वाले छोड़ो, उनको इस्लाम से भी सरोकार नहीं, जन्नत भी मालूम नहीं, जहन्नम भी मालूम नहीं। उन मुसलमान कौम की बात कर रहा हूं मैं। जो मुसलमान कौम कबीरा गुनाहों में पड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम पर ऐसी ऐसी बीमारियां उतारेगा, ऐसे नाम जो इन्होंने भी नहीं सुने होंगे, इनके बाबा दादा ने भी नहीं सुने होंगे। सुने थे कब? तो कोरोना अल्लाह सुना डाला, न सिर्फ सुना डाला, ऐसा डर पूरे कंट्री को अल्लाह लॉकडाउन कर डाला। बस्तियां के बस्तियां लॉकडाउन, सिटियों के सिटियां लॉकडाउन। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, अरे महीने महीने निकल गए। अल्लाहू अकबर। कोरोना के तमाम सीनों में सबसे दिल दहला देने वाला मंजर कौन सा दिखा? हम ना तड़प तड़प को मरने वाले तो मरे छोड़ो, अस्पताल में ब्लैक में बेचे गए एक एक बेड, पूरा अस्पताल भर गया, एक बेड भी खाली नहीं। अब बाप को कोरोना आ गया, मां के सांसा नहीं खिल रहे, क्या बोल रहा है इन्हें? मेरी पूरी दौलत देने तैयार, 10 लाख रुपए देने तैयार, मुझे एक बेड खाली करके दो। कहीं को लॉकडाउन, एक अला बाहर दिखा तो इनको हेल्प करेंगे, एक अला बाहर दिखा तो इनको क्या तो भी ये करेंगे। वो कौन की? अल्लाह के बंदे, उनको खाना बांटे वाले, पानी बांटे वाले, 100 में 1, 90% घर में छपले को बढ़ गए। कितने? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अरे 2000-2500 किलोमीटर कैसा जी चले जाती? अपने छोटे छोटे बच्चों को खांधे पर बिठा ले को, अपने बीवियों को, अपने बूढ़ी माँ को ले को उतनी दूर चले जा सकती क्या जी? जो गाड़ियों में बैठे थे वो गाड़ियां खराब हो गए रास्ते में। अल्लाह अकबर। कभी सोच को देखो, हम ना अल्लाह वो नौबत नहीं लाया, हमें आराम से साउथ के साउथ में बैठी,
जो नार्थ वाले यहाँ आए थे कामा करने, कितने अजाबत झेले गए। ये तमाम अजाबात अल्लाह बोलता तुम्हारी अय्याशी, तुम्हारी फहाशी की वजह से हम देते। 5 किस्म के गुनाह, 5 किस्म के अजाबात। खैर, लॉकडाउन की गमज़दा दास्तान बयान करने नहीं बैठा मैं तुम्हें सिर्फ वो झलकियां याद दिला लो। अल्लाह ऐसे भी अजाब का मंजर हम ना दिखा सकता। सुधर जाओ, ऐसे गुनाह न को करो। नौजवान अय्याशी से बाहर आ जाएं, फहाशी से बाहर आ जाएं। एक मर्तबा तुम्हें गुनाहों का वीडियो बना को इंटरनेट की दुनिया में डाले, कितने लोग देख को तुम्हारे बदन से मजा उठाती, वो गुनाह तुम्हें मर को खबर में गए तो भी वो गुनाहों का बदला तुमने अल्लाह देते रहता। कई गुनाह भाई है, अल्लाह के वास्ते तौबा करो। इंटरनेट की दुनिया में जैसे अपलोड करने का ऑप्शन दिया, डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया। जाओ सच्ची तौबा करो, वो तमाम इंटरनेट की दुनिया से वो वीडियो को डिलीट कर दो जो तुमने अपलोड करके रखा है। अल्लाह से तौबा करो। ऐसी टिकटॉक के वीडियो, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारी बहनें हो, हर आदमी को चाहिए अय्याशी फहाशी के, बेहयाई के वीडियो को डिलीट करे, वरना तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया जब तक वो वीडियो को देखेगी तुमने उसका सिला मिलेगा, तुमने उसका गुनाह का बदला मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है वलो शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन यदखुलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अल्लाह अगर चाहता तो तुम तमाम को एक उम्मत बना देता, और लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से बर्बाद ना कर, एक झटके में बर्बाद ना कर। अल्लाह दुआ कबूल कर लिया। या अल्लाह मेरी उम्मत को जमीन के अजाब से एक झटके में हलाक ना कर। अल्लाह दूसरी दुआ भी कबूल कर लिया। अल्लाह मेरी उम्मत को खाना बदोशी में फिरके फिरके मत बटा, एक और नेक बना के रख। अल्लाह ताला ये दुआ कबूल नहीं करे। अल्लाह ने कहा बनी इसराइल में 71 फिरके बने, नसारा में कौम नसारा में 72 फिरके बने, तुम्हारी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। कौम बनी इसराइल से भी एक जमात जन्नत में, कौम नसारा से भी एक जमात जन्नत में, तुम्हारी उम्मत से भी एक जमात जन्नत में। कौम बनी इसराइल के 70 पर 1 में 70 जहन्नम में, कौम नसारा में 70 पर 2 में से 70 पर 1 जहन्नम में, तुम्हारी उम्मत के 70 पर 3 में से 70 पर 2 जहन्नम में। 70 पर 1 70 पर 2 जहन्नम में। तीनों उम्मतियों से एक जमात जन्नत में, मेरी उम्मत की एक जमात जन्नत में, 70 पर 2 जहन्नम। अल्लाह के नबी कौन सी जमात होगी वो जो जन्नत में जाएगी? तो नबी ने क्या कहा, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा आज के मौसम में, आज के दिन जिस दीन पर हम लोग कायम हैं, जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हमारे जमाने में इस्लाम है, ऐसे इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस इस्लाम पर चलने वाले, ऐसा तौहीद पर अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या 4 इमामा थे? क्या नबी के जमाने में दरगाहें थी, मज़ारां थे? नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ कुरान था, हदीस था, तौहीद, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत। ये सादा सीधा इस्लाम, इसी को बोलती कामयाब होने वाला इस्लाम। नबी जिस पर है, नबी के सहाबा जिस पर है, वो दीन कामयाबियों वाला दीन, जन्नत में जाने वाली जमात, जन्नत में जाने वाली जमात। अपने आप को अहले हदीस बोल लेने से जन्नत नहीं मिलती, अपने आप को हमें वो जमात बोल लेने से नहीं मिलती। हमें सुन्नी, हमें वहाबी, हमें तबलीगी, हमें जमात इस्लामी, क्या तो भी नाम रख लो, अल्लाह नामा से नहीं पुकारता, क़यामत के दिन नामा से नहीं पुकारता। आओ भाई वहाबियो, तबलीगियो, आओ जी। अल्लाह ये बोलता कौन है वो लोग जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चले, सहाबा के नक्शे कदम पर चले? कौन है वो लोग जो कुरान के मुताबिक अमल करे, हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारे? बस इतना चल्ला सवाल करता, नाम क्या तो भी रख लेंगे उन्हें। अगर उसकी जिंदगी किताब और सुन्नत पर कायम है, उन्हें जन्नत। अल्लाह के नबी ये 2 किताबें छोड़ को गए,
तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इस पर मजबूती से कायम रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगी। किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह हामीम सजदा रखा है। इसमें हामीम सजदे, इस सूरह के बारे में सरदारान मक्का ने जब देखा नबी अलैहिस्सलाम का दिन दिन ब दिन फैलते जा रहा, बहुत ज्यादा कसरत से फैल रहा, बहुत तेजी से फैल रहा, मक्के के लोग उतबा बिन रबीआ को तैयार करे। उतबा बिन रबीआ क्या तैयार करे? तुम जाना नबी को बोलना, तुम ना क्या होना हमें देती, ये दावत दिन बंद करो, तुम्हें ये एक अल्लाह की दावत बंद कर डालो। उतबा बिन रबीआ आया, लालच दिया, ऑफर, ऐ नबी पैसा होना पैसा दे डालती, नहीं सरदारी होना सरदार बना लेते, नहीं तुम्हारा इलाज कराना, जादू कौन तो करें तुम ना, हमें इलाज कराते, नहीं तुम ना खूबसूरत औरत होना खूबसूरत औरत देते, ये बंद कर डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा बिन रबीआ के सामने ये सूरत पढ़कर सुनाए, सूरह हामीम सजदा पढ़कर सुनाए। उतबा बिन रबीआ गौर से हामीम सजदा, इस सूरत को सूरह फुस्सिलत भी बोलती, सूरह फुस्सिलत या सूरह हामीम सजदा। जब उतबा बिन रबीआ यह सूरत सुना, हैरान परेशान हो गया और जाकर अपने सरदारों से कहता है, मक्के वालों से, क्या है मक्के वालों, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, मोहम्मद जो पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना वो जादू है, ना वो कहानत है, ना वो किस्से हैं, ना वो कहानियां हैं, बल्कि वो तो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है, अल्लाह का कलाम है। मैं वो कलाम सुन के हैरान हो गया। लोग उतबा बिन रबीआ को ताने देना शुरू कर डाले, अरे हमें जाको समझा को, उसे रास्ते से हटा भाई, तू भी जाको, जादू तेरे पर भी होगा क्या, तू भी जादू का सिर हो गया। लोग हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला लेकर, अभी इस्लाम कबूल नहीं करे थे हसन बिन साबित, बड़े शायर उन्होंने क्या बोले, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर शायरी का जवाब देना। उन्होंने ऐसी शायरी पेश करती, हम ना सुन को हमें खुद हैरान, हमें पढ़े वाले पंडिता हमारे हाथ से नहीं आता, आप उनकी शेर शायरी का जवाब देना, अच्छी बात, लेकिन एक कंडीशन, क्या, काना में रुइया दवा घुसाड़ लेना, उनका कहीं का भी सुनना नहीं, कहीं को सुनना नहीं। अब उन्होंने क्या बोल रही, मैं सुना तो ना आंसर दूंगा, नहीं सुनना का नहीं सुनना, कहीं नहीं सुनना। जितने भी लोग आज तक उनका कलाम सुनी, सब उनके छोको रह गई, हमें नहीं चाहते तुम्हें उनके होना, इसीलिए काना में दबा रख लेना, उनके पीछे खाली शेर शायरी बोले फिरना, तुम ना कहते पैसे हो ना हमें देते, अच्छी बात ले हुई। आए 3 दिन नबी के पीछे फिरे, नबी कहाँ जाते थे, वहां क्या की शेर शायरी बोले फिरना, फिरे। 3 दिन के बाद जाको घर में बैठी, उनके दिल में एक बात अल्लाह ताला डालता है, ऐ हसन तू देखेंगे पढ़ास वाला पंडित, अरबी किसे बोलती, अरबी ग्रामर किसे बोलती, अरबी की लुगत किसे बोलती, अरबी की शायरी किसे, सो पढ़ास वाला सिखास वाला। और जिस आदमी को तू आंसर देने यहाँ आया, वो आदमी को से मदरसे में भी पढ़ा नहीं, को से उस्ताद करने सीखा नहीं, एक ऐसे आदमी का कलाम सुनने तू डर रहा क्या, जो नहीं पढ़ को है, तू देखे बड़ा पंडित, अरे कान में कभी निकाल को सुन भाई, तू परख तो सकता ना, ये कलाम कैसा, ये कैसा नहीं मालूम, तो तू पंडित ना। अब तू जब सुनेगा नहीं, कौन से टॉपिक पर उन्होंने बोल रही, उस टॉपिक में तू आंसर कैसा देगा, अरे बात तो सही है। तीसरे दिन क्या करे, मैं हत्ता भी दीवाना नहीं, पागल नहीं, अल्लाह मुझे अकल दिया, कौन सा सही कौन सा गलत परख सकता हूं मैं, निकाल को सदा सुने। जैसे ही कुरान सुने, अल्लाह ताला ईमान का असर दिल पर उतार डाला, नबी के पास जाको कलमा पढ़ डाले, अल्लाह के नबी मैं क्या की समझ को तुम्हारे पीछे पीछे फिरा, ये कलाम किसी इंसान का बनाया नहीं हो सकता, मैं पूरे दावे से बोलता हूं ये अल्लाह का कलाम है। इस कलाम के अंदर जो फसाहत है, जो बलागत है, अल्लाह अकबर, मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा।
मैं अच्छा पंडित हूं बड़ा अरबी का, मैं जान सकता हूं आदमी का बनाया सो कलाम कैसा रहता, आदमी का नहीं बनाया सो कलाम कैसा। ये कलाम के अंदर एक अजीब किस्म की तासीर और जो लहन है और जो इसमें शेर शायरी के जो तर्ज है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का कलाम। मैं फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आकर मक्के वालों को बताए, मक्के वालों मैं पंडित हूं, मैं जान सकता हूं इंसान का कलाम क्या, अल्लाह का कलाम क्या। ये नबी जो पेश करता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम। सारे मक्के वाले परेशान हो गए, हमें तुम ना उधर आंसर देखो, हम ना जिताती ना तो आए तो तुम्हें भी उधर केस हो गए क्या जी, कहीं को हुए जी, कान में के कहीं निकाले जी, हमने मालूम था निकाले जाती उधर करेगा। अरे मैं अक्ल रखता हूँ भाई, परख सकता हूँ, मैं सुनना चाहता था आखिर वो पढ़ता क्या है, वो बोलता क्या है। जैसे ही मैंने नबी का कलाम सुना मैं नबी का गिरविदा हो गया, क्योंकि इस कुरान के अंदर अल्लाह वो तासीर रखा है। हम ना अरबी समझ में आती नहीं, चुप के हमें बैला खड़े से खड़े रहते हैं, क्या आते भी पढ़ ले जाओगे। कुरान तर्जुमे से पढ़ना सीखो, मालूम होता कुरान के अंदर जो फसाहत, जो बलागत, जो कशिश अल्लाह रखा। अल्लाह अकबर। नबी कुरान पढ़ते पढ़ते जब आयतें अजाब की आती, क़यामत की आती, जहन्नम की, नबी इस कदर रोते थे आपके सीने से हांडी में जैसे सालन पकने की आवाज आती, सीने से हिचकियों की वैसी आवाज आती थी। नबी, खाली नबी नहीं, सहाबा भी रो पड़ते, उन्होंने कई को रोते थे, उनको कुरान समझ में आता था इसलिए रोते थे। आज हमें पीछे खड़े रहती, कैसी आयत आती, चुप सिर के ऊपर से धुआं गए सरका जाते रहती, वो आयत हम ना समझ में आती, ना रोना आता, क्या अभी नहीं। अरे समझ में आए सर का कुरान पढ़ो जी, कुरान को समझने की कोशिश करो जी। कहां से तो बाहर गांव से, अमेरिका से हमारा बेटा लेटर भेजता इंग्लिश में, हम ना समझ में आता नहीं, पढ़ने आता नहीं, हमें दूसरे घर जाकर पढ़ाते नहीं। मेरा बेटा क्या मैसेज भेजा कि इंग्लिश में पढ़ को तर्जुमा कर को बोलो। अल्लाह जो पैगाम हमारे लिए उतारा, हमें वो पढ़ को जानना नहीं चाहते क्या हमारे लिए मेरा परवरदिगार हमने पैदा कराया वाला खालिक मालिक इसमें क्या अहकाम नाज़िल कराया, इसे कम से कम पढ़ना, सुनना, समझना। अरे तुम ना नहीं पढ़ने आए, क्या हुआ, आज कुरान तर्जुमे के साथ मौजूद है इंटरनेट पर। कौन सा सूरा सुनना चाहती तर्जुमे से, खाली लगा लियो ऑडियो, कान में हेडफोन रख लियो, कुरान की तिलावत भी आती, तर्जुमा भी आता। गौर से वो सुनकर समझने भी टाइम नहीं हमारे पास। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह के नबी कहेंगे क़यामत के दिन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हमारे हक में, कुरान को इन्होंने छोड़ दिया। आज कुरान हमें कसम खाने के वास्ते उठा कर रख ली होता नहीं, क्या तो भी बरकत के वास्ते दुकान ओपन हो रहा तो सूरह यासीन पढ़ने के वास्ते ओपन कर दी, क्या तो भी पढ़ को, ये पढ़े सूरह रहमान पढ़े तो बरकत आती कहते वो नहीं, कौन तो भी मर रहा सकरात लगी, सूरह यासीन निकाल बा, पढ़वा, बंद करवा, रखबा नहीं। अरे उन्हें क्या कि प्रॉपर्टी लिया गया तो तुम्हारे पर केस कर रहा, कुरान उठाते खसमा खाने के वास्ते, मैं नहीं लिया कर, नहीं लिया बा, इसके वास्ते से रखी हमें नहीं, अभी ये भी नहीं। अरे क्या की आराम नहीं कहते उनको, अरे हमारी बेगम की डिलीवरी नहीं हो रही कहते, अरे उनको क्या की जिन्नात असर हो गई ना, ऐसा जाफरान से ओरिजिनल जाफरान केसर लेगा मेरे पास, दूध में घोल निकाल, जाफरान से इन्हें कुरान लिखा सच, अब उसके ऊपर से धो, नीचे से घोल निकाल को पानी पी तो अच्छा हो जाता। खाली धो को पीने को से कुरान रख ली, नहीं बोले तो उसमें लिख आयतल कुर्सी, सूरह खुल बिल फलक, खुल बिन नास, फाड़ पेपर मुदर, चिट्ठी घुसड़, किसमें, वो पलीते में, यहाँ अंदर लगा ले, यहाँ भर ले, न तो कब्र में लगा ले। अल्लाहु अकबर। उसके वास्ते क्या आया कुरान, उसके वास्ते आया कुरान। डिलीवरी नहीं होती है, इज्जत समाउन शक्कत का सूरा, उसकी आयत निकाल को औरत के रान में भर लिया तो डिलीवरी आसान होती। अस्तगफिरुल्लाह, ये अकीदा। सूरह मारिज, जिस मर्द बाने को ज्यादा एहतलाम होता, सूरह मारिज का नक्शा बनाओ, फाड़ो और उसे कमर में लगा लो, एहतलाम होना बंद होता। जिस औरत को खाली बेटियां पैदा हो रही, बेटे पैदा नहीं हो रहे, सूरह निसा
का नक्शा बनाओ, फाड़ो और उसे लज्जा को उसके गले में डालो, बेटे पैदा कर। ये तमाम खुराफाती बातें, बकवास बातें, इन्हें बोलने वाले को अल्लाह का डर पैदा होना। ये कुरान एहतरामा बंद करने, औरत के डिलीवरियां करने, घोल को पीने के वास्ते नहीं आया मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ये कुरान पढ़ने के वास्ते आया, शिफा के वास्ते आया। और ये तमाम बातें मौलाना अशरफ अली थानवी के कुरान में, हरा कुरान है, ऐसा कुरान है, उसके नीचे उचले इसमें तर्जुमा है। वो कुरान के शुरू में वो पूरे नक्शे हैं, सूरह बकरा का नक्शा, सूरह आल इमरान का नक्शा, सूरह कहफ का नक्शा, सूरह निसा का नक्शा, अव्वल से लेकर आखिर तक पूरे कुरान का नंबरों में नक्शा है। वो नक्शा लगा लिया तो ये होता, ये नक्शा लगा लिया। उन्होंने खुद लिखिए, मैं मेरी तरफ से हमें बोल रहा हूँ, बात आए उनके किताबों में लिखो है, सच मैं बोल रहा हूँ। क्या कुरान इसके वास्ते आया? क्या कुरान इसके वास्ते आया? क्या कुरान की इज्जत ये औरत के रान में बांधती तुम्हें, कमर में भरने को लेटरिन में ले जाती कुरान को, तुम्हें इज्जत क्या थी कुरान की ये? अरे कुरान के साथ तुम्हें ऐसी बेहुरमती करेंगे तो अल्लाह जिल्लत के नहीं दिन दिखाया तो क्या इज्जत के दिन दिखाता? अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करा तो क्या रहमत नाजिल करता? कुरान को हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। अल्लाह के नबी सच्चा मुकदमा दायर करेंगे कयामत के दिन, सच कहेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। शायर बोलता, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख खुदा होकर। कुरान को हमने छोड़ दिया, ज़लील व खार अल्लाह हमारा मुक़द्दर बना दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, वमा कुंतुम तस्तरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, और जो कुछ तुम छपाते हो अल्लाह तबारक व तआला के पास ये गवाही देने वाले बनेंगे, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारी जिल्दें, जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह उसे जाहिर कर देगा। इस आयत के शान नुज़ूल में अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, खाने काबा के पास दो सख्फी बैठे थे, बुद्धू। एक बोल रहा था, अल्लाह ताला हर चीज सुन लेता, देख भाई कैसा सुन लेता रहूंगा, हमारा क्या तो भी चले दे, अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाजिल हो जाए, अल्लाह को कैसा मालूम होता रहूंगा। ये कला क्या बोले, हमें जोर से बातें कर लिए तो अल्लाह मालूम कर लेता रे, हमें जोर से बोले तो अल्लाह को मालूम हो जाता, अल्लाह सुन लेता। और एक कला क्या बोले, हो रे हमें को से तो बातें हल्लू बोल लिया तो अल्लाह नहीं सुनता। ये बोलना था, अल्लाह ये आयत उतारा, क्या बोले, तुम्हें छपाओ, तुम्हें जोर से बोलो या हल्को बोलो, हल्का बोलो या आहिस्ता बोलो, अल्लाह तुम्हारे आवाज दूर की बात, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल पैदा होती वो भी अल्लाह जानता। हमें भी नहीं जानते जो अल्लाह जानता, हमें भी नहीं जानते। मतलब अब इस वक्त हमारे 18 अप्रैल 2023, ये हम लोग 26वीं रात जाग रहे, 26वीं रात है रमजान की, 25 रोजे मुकम्मल करके 26वीं रात जाग रहे। आज की रात में हमारे दिल में क्या ख्यालात है, अब प्रेजेंट आप लोगों के दिल में क्या ख्यालात है वो आप जान रहे। कल सुबह जब आप उठेंगे, कल सुबह 18 अप्रैल को सुबह जब आप उठेंगे, सुबह में आपके दिल में क्या ख्यालात आती हैं, दोपहर में क्या ख्यालात आती हैं, शाम में क्या ख्यालात आती हैं, वो आप भी नहीं जानते। सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट, क्या क्या ख्यालात मेरे दिल में आती कल, वो आप भी नहीं जानते, अल्लाह सब कुछ जानता। खाली दिलों का भेद जानने वाला नहीं, आएंगे तेरे दिल में क्या पैदा होने वाला ख्यालात वो भी अल्लाह जानता, जो तू नहीं जानता, जो हम नहीं जानते, अल्लाह जानता। इस तरह वाकिफियत रखने वाला अल्लाह ताला। अब ऐसी हालत में बाज लोग क्या करती, जबान से नियत बोलती, जबान से नियत हदीस से साबित है नहीं। अगर जबान की नियत हदीस में होती तो वो अरबी में होती, उर्दू में नहीं होती। उर्दू में नियत करती, मैं नमाज पढ़ता हूँ ज़ोहर की, मुंह मेरा खिबले के, 4 रकात ताबे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। भाई ये दुआ, ये नियत अगर सऊदी अरब से आई रहती तो क्या नबी को उर्दू आती थी क्या? नबी उर्दू में बोल को दिए क्या तुमने, मुंह मेरा खिबले के, ज़ोहर की नमाज इस इमाम के, अल्लाह अकबर, ऐसा बोलने के वास्ते वो अरबी में रहती थी दुआ। अरबी सऊदी अरब से आती तो नबी के जरिए से अगर ये नियत आती तो अरबी में रहती,
لیکن ہمیں کس میں پڑھ رہی؟ اردو میں بول رہی. اردو میں بولنا خود اس بات کی دلیل ہے یہ میڈ ان انڈیا دعا ہے. اللہ کے نبی بتائے سو دعا ہم میں. یا اللہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کو معلومیش نہیں ہے ظہر پڑھ رہا سو, منہ میرا قبلے کے, اللہ کو معلومیش نہیں ہے منہ کہاں کر کھڑا کرنے کا. تو اب اس امام کے اللہ اکبر. اب کون سے امام کے؟ وہ بہار سے ایک مولوی صاحب ہے نا, بہار کے مولوی صاحب. تابع اس امام کے اللہ اکبر. پہلی رکعت میں امام کی ہوا خارج ہو جاتی, وضو ٹوٹ کو جاتا, وہ امام پیچھے آتا. کون سا امام؟ تلنگانے کا امام آگے بڑھتا. اس کی نماز کیا ہونا؟ تابع بہار کے امام کے قد بولنے کو کھڑا تھا سوئی نے شروع میں. بہار کے امام کا ہوا خارج, وضو ٹوٹیا, پیچھے آیا, تلنگانے کا امام آگے بڑھا. اب دوسری رکعت میں توڑنا انہیں. یا اللہ پہلی رکعت میں میں بہار کے امام کے تابع ہو کھڑا تھا, اس کا ٹوٹ کو گیا, دوسرا اٹھ کو کھڑا. یا اللہ دوسری رکعت تلنگانے کے امام کے تابع اللہ اکبر. اب اس کا بھی ٹوٹ کو جاتا, کیا کیے کھو کو, پھر اور ایک آندھر پردیش والا آگے بڑھتا. ایسا بڑھ سکتی نا, کس کا بھی ٹوٹ سکتا, وضو ٹوٹ سکتا, کون بھی آگے بڑھ سکتا. اب انہیں کیا کرنا؟ تابع اس امام کے. ارے نہیں ہے جی یہ ہے نہیں اسلام میں. ایک کون کی ڈرائیور بڑی داڑھی رکھو ٹوپی چھوڑ کو ایک کھیڑے سے جا رہا تھا. وہ کھیڑے میں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا اتریا, نماز پڑھیں گے گھر گیا. کھیڑے والے دیکھے کہ 3 دن سے ہمیں امام کو تلاش نہیں, کیا مولوی صاحب ایسا کہے نا بھائی تم امامت کرو بھائی, پکڑ لیا اسے. ایسے کون زبان سے نیت کرنے والے پکڑ لیا اسے, بھائی امامت کرو بھائی. اے میں ڈرائیور, میں امام میں ڈرائیور, کیا کی نماز کا ٹائم ہوگا لاری کھڑا کرے بھائی تمہیں کتنا کماتی, مہینے کتنا کماتی. میں مہینے کو آرام سے میں 5,000 روپے کما, 10,000 دیتی ہمیں, امامت کر لیتے رہو آرام سے. انہیں بھی سوچا کتنا اچھا ہے نا, مہینے 5,000 کماتو, آرام سے وضو کر لینا, کیسا بھی نماز پڑھنا ہے مجھے, پیچھے کھڑک پڑھنے کا, آگے کھڑک پڑھا ڈالیا تو 5,000 کی جگہ 10,000 آ رہی. کئی چکے یہ حرارت پڑھنے کو لائن وہاں چھوڑ ڈالیا لاری, اندر امام بن کو نماز پڑھانے شروع کرے. تابع اس امام کے پورے پڑھ رہی. 1 مہینہ ہوا سیلری نہیں ملی, 2 مہینہ ہوا سیلری نہیں, دیو جی دیتی ٹھہرو جی کہاں جاتی, دیتی ٹھہرو جی. 2 مہینے بعد تیسرا مہینہ آ گیا. کیا کرا, سجدے میں گیا, ہلو اٹھیا, پیچھے آ گیا. انہوں سجدہ کر رہی امڑتا کیا کی تبڑتا کیا کی, ہلو پیچھے سے کہا اٹھ کو دیکھا, امامش نہیں ہوا, امام غائب. کہاں جاگ بیٹھیا؟ لہریم جاگ بیٹھیا. آئے اسے آ بھائی کیا تو ایسا کرا نا, پوری جماعت سجدے میں مری, آ بھائی ان کو سجدہ کر اٹھاتا, آ بھائی تو اٹھا سکتا, دوسرا نہیں اٹھا سکتا, کہیں کہ تیرے تابع ہو گئی انہوں سبھی. 2 مہینے سیلری سامنے رکھو, دوسرا سجدہ کرا تو نہیں کراتا. مجھے سیلری رکھے تو میں جب ان کو کرانا, میرے علاوہ کوئی بھی کرا سکتا نہیں, وہ سجدے سے اٹھ سکتے نہیں. 2 مہینے سیلری پہلے رکھو, دوسرا سجدہ کرا. میرے بھائیوں یہ ایک لطیفہ تھا, حقیقت نہیں تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں تابع اس امام کے قد بولنے والی جو دعا ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ حدیث رسول ہوتی تو عربی میں ہوتی. اچھا, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر, انما الاعمال بالنیات, نیت پر ہوتا. بغیر نیت کے تمہیں نماز کیسا مزہ پڑتی, بغیر نیت کے نماز کیسا پڑتی, کیسی نیت نہیں ہماری, کئی کو نیت نہیں. اب ظہر کے 1 بجے, دوپہر کے 1 بجے تمہیں اپنے گھر سے گاڑی کی چابی لے کو, گاڑی آن کر لے کو آ رہی, کیا وجہ سے آ رہی, تمہارے دل میں معلوم میں اب گاڑی لے کو نماز کو مسجد کو جا رہا ہوں, مسجد کے لیے نکل رہا ہوں. کئی کاری کیا تم نہ معلوم نہیں, کیا تمہیں دیوانے, کیا تو بھی ارے اخر ہے نا بھائی, کئی کو آ رہی مار کے چھوڑ دو مسجد کو, کئی کاری ہے, تمہارے دل کو بھی معلوم, دماغ کو بھی معلوم کہ نماز کا ٹائم ہوا, نماز کو میں جا رہا ہوں. یہ جس ارادے سے تمہیں نکل کاری نا, اسے بولتی سو نیت, اسے بولتی سو نیت. اب تمہیں یہاں آنے کے بعد چھکیا بیٹھ رہی, کیا وضو کر رہی, وضو کرتے ٹائم کو کیا نیت سے کرتی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, ظہر کی نماز کی نیت سے وضو کرتی. پھر مسجد میں آ کو کھڑتی, کیا واسطے, 1 بجے اذان, 1:15 بجے جماعت, 1:15 بجے پورے صفوں میں سنتاں پڑھنے کھڑتی تمہیں 1 سے 1:15 کے درمیان. کیا واسطے,
मुझे ज़ोहर के सुन्नत अदा करना है, इमाम आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, ज़ोहर की नमाज पढ़ना, ये तमाम जो तुम्हारे दिल में प्लान, इरादे, ये सारी चीजें सोचे लेकर आती ना, इसे बोलती सो नियत। फिर तुमने जबान से अदा करने की क्या अभी जरूरत नहीं, नियत ताबे इस इमाम के, मुंह मेरा खिबले के, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ इस्लाम में है नहीं। एक हमारे मौलवी साहब ऐसा मस्जिद में घुसे, अल्लाह अकबर बोलने से पहले मुंह मेरा खिबले के, ताबे इस इमाम के बोलने का छोड़ को उन्होंने क्या करे, मुंह मेरा मस्जिद के दीवार के और ताबे ये खिड़कियां के, वो खिड़कियां के, ऊपर के दरवाजे के, नीचे के जम खाने के, अल्लाह अकबर। हे क्या चीज तुम्हें ऐसा बोले, कहीं कुछ तुम्हें ऐसा बोले, कहा है दिखाओ। उन्होंने पकड़ लिए, तुम्हें बोले ना वो कहा है दिखाओ, ना उनका है ना मेरा है। मेरे भाइयों, हदीस में क्या भी नहीं है, जबान से अदा की जाने वाली नियत कोई सी भी सही नहीं सिवाय हज और उम्रा के। हज और उम्रा में अल्लाह के नबी बताए, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये नियत जबान से बोल को आप क्या है, हुदूद हरम में दाखिल होना, वहां है और वो अरबी में है। आप हज का इहराम डाल रही, हज की दुआ पढ़कर आप इहराम पहना, उम्रे का इहराम डालना चाहिए, उम्रे का नियत से आप इहराम पहना और वो लफ्ज बोलना, वहां है जुमला बोलने का। उसके अलावा ये नवैतु अन असूमु लका गदन, ये सहरी में, सहरी खाने के बाद जो दुआ पढ़ती है, नवैतु अन असूमु लका गदा, ये भी नहीं है हदीस में, ये भी नहीं है। आप उठकर जो सहरी खा रही ना, क्या वास्ते खा रही, रोजा रखने के नियत से खा रही, ये नियत, ये इरादा ही आपकी नियत है, जबान से अदा की जाने वाली ये दुआ सही नहीं है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अल्लाह से दुआ है सही दीन को समझने, सही दीन पर अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। जितनी हक और सच बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं वो अल्लाह की तौफीक से हैं। जो उजलत लिसानी में कोई सहू अगर मैंने कहा है तो वो मेरी या शैतान की जानिब से है। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए।